I welcome you all on the official channel of Erudition Studies. ਅੱਜ ਦੇ ਇਸ ਪਾਰਟਿਕੂਲਰ ਸੈਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ 29th, 30th ਐਂਡ 31st of August ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਾਂਗੇ. ਆਲਰਾਈਟ, ਐਂਡ ਅੱਜ ਤੁਹਾਨੂੰ ਮਾਰਨਿੰਗ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲਿਆ ਸੀ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਟੈਨਿਸ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਗ੍ਰੈਂਡ ਸਲੈਮਸ 2021 ਦੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਫॉर एवरी एग्जाम. ਇਸ ਲਈ ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਹੋਏਗਾ ਉਹ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਲੇ ਜਾਣਾ ਚੈਨਲ ਦੀ, ਜਾਂ ਫਿਰ ਲੇਟੈਸਟ ਵੀਡੀਓਜ਼ ਵਿੱਚ ਜਾਓਗੇ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਇਹ ਵਾਲਾ ਸੈਸ਼ਨ ਮਿਲ ਜਾਏਗਾ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ. ਜਿਹੜੇ ਵੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ PDF ਚਾਹੁੰਦੇ ਆ ਤਾਂ ਉਹ ਟੈਲੀਗ੍ਰਾਮ ਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਜਿਸ ਦਾ ਲਿੰਕ ਤੁਹਾਨੂੰ ਡਿਸਕ੍ਰਿਪਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਾ ਹੈ. ਔਰ ਇੱਥੇ ਹੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ, ਠੀਕ ਹੈ. ਸਬਜੈਕਟ ਵਾਈਜ਼ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੌਰਟ ਆਊਟ ਕੀਤਾ ਹੋਇਆ ਹੈ. ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਲਈ ਜੋ ਫ੍ਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੋਰਸ ਸਟਾਰਟ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ PPSC ਦਾ, ਉਸ ਦੇ ਲਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਮਿਲ ਜਾਏਗੀ ਫ੍ਰੀ ਕੋਰਸ ਫॉर ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਉਹਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ. ਬਟ ਮੈਂ ਸਪੈਸ਼ਲੀ ਪ੍ਰਿੰਸੀਪਲ ਦੇ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਨੂੰ ਬੋਲ ਰਹੀ ਹਾਂ ਬਿਕਾਜ਼ ਬਾਕੀ ਸਟੂਡੈਂਟਸ ਜੋ ਹੈ ਉਹ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ ਡੇਲੀ ਹੀ ਦੇਖਦੇ ਨੇ. ਓਕੇ, ਤੇ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਵੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਮੋਸਟ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰੋਲ ਪਲੇ ਕਰਨਗੇ ਤੁਹਾਡੇ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਵਿੱਚ. ਐਕਸਪੈਕਟਡ ਤੁਸੀਂ ਮੰਨ ਕੇ ਚੱਲੋ ਕਿ ਅਪਰੋਕਸੀਮੇਟਲੀ 20 ਕੁਐਸਚਨ ਜੋ ਹੈ ਨਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਪੁੱਛੇ ਹੀ ਜਾਣੇ ਹੈ. ਇਸ ਲਈ ਡੇਲੀ ਦੇ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ. ਔਰ ਪ੍ਰੀਵੀਅਸ ਜੋ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਹੈਗੇ ਆ ਨਾ ਉਹ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਾ ਦੂੰਗੀ ਫ੍ਰੀ ਵਾਲੀ ਵਿੱਚ, ਜੋ ਤੁਹਾਡੇ ਲਈ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਨੇ. ਓਕੇ, ਮਾਸਟਰ ਵੀਡੀਓਜ਼, ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਫੋਲੋ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਾ. ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਸਟਾਰਟ ਕਰਾਂਗੇ ਅੱਜ ਦੇ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ. ਥੋੜਾ ਜਿਹਾ ਮੇਰਾ ਗਲਾ ਖਰਾਬ ਹੈ, ਪਲੀਜ਼ ਇਸ ਨੂੰ ਬੀਅਰ ਕਰਨਾ. ਹਾਂਜੀ, ਤਾਂ ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਪਾਂ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਹਾਂ 29th, 30th ਐਂਡ 31st of August ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਨੂੰ. ਫਸਟ ਕੁਐਸਚਨ ਦੇਖਾਂਗੇ, who inaugurated the renovated complex of ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਸਮਾਰਕ. ਤਾਂ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਜੋ ਰੈਨੋਵੇਸ਼ਨ ਕੰਪਲੈਕਸ ਹੈ ਉਸ ਦਾ ਨਾ ਉਦਘਾਟਨ ਪੁੱਛਿਆ ਗਿਆ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤਾ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਨਰਿੰਦਰ ਮੋਦੀ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਨੇ ਜੋ, ਠੀਕ ਹੈ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਇਹ ਨਾ 102ਵੇਂ ਨੰਬਰ ਦੀ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਸ ਦੀ ਐਨਵਰਸਰੀ ਮਨਾਈ ਗਈ ਹੈ. ਆਲਰਾਈਟ, ਤੇ ਇਸੇ ਹੀ ਮੌਕੇ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇਸ ਕੰਪਲੈਕਸ ਦਾ ਉਦਘਾਟਨ ਕੀਤਾ ਗਿਆ. ਔਰ ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ 4 ਮਿਊਜ਼ੀਅਮ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ ਜੋ ਕਿ ਇਸੇ ਹੀ ਸਮਾਰਕ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡਿਵੈਲਪ ਕੀਤੀਆਂ ਜਾਣੀਆਂ. ਓਕੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਗੈਲਰੀਜ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ, ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ 1919 ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਵੈਂਟਸ ਹੋਏ ਸੀ ਨਾ, ਹਿਸਟੋਰੀਕਲ ਵੈਲਿਊ ਰੱਖਦੇ ਆ ਜੋ, ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਹੀ ਦਿਖਾਇਆ ਜਾਏਗਾ, ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨੀ ਲਗਾਈ ਜਾਏਗੀ. ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ PM ਮੋਦੀ ਨੇ ਇੱਕ ਹੋਰ ਅਨਾਉਂਸਮੈਂਟ ਕੀਤੀ ਹੈ ਕਿ ਨਾ ਮਲਟੀ ਡਿਵੈਲਪਮੈਂਟ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਲਿਆ ਜਾਏਗਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ. ਰਾਈਟ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਏਗਾ, ਜੋ ਇਹ ਕੰਪਲੈਕਸ ਬਣਿਆ ਇਸ ਨੂੰ ਹੁਣ ਅਪਗ੍ਰੇਡ ਕੀਤਾ ਜਾਏਗਾ ਪੂਰੇ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਦੇ ਕੰਪਲੈਕਸ ਨੂੰ. ਆਲਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਕਿ ਜੋ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਹੈ ਇਹ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੋਏਗਾ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈ ਨਾ. ਔਰ ਇੱਥੇ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਕਿਹੜਾ ਸੀਗਾ, 13 ਅਪ੍ਰੈਲ ਨੂੰ, ਜਦੋਂ ਵਿਸਾਖੀ ਵਾਲੇ ਦਿਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਹੈ ਤੇ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਹੈ ਨਾ. ਤਾਂ ਇਹ ਤਾਂ ਸਭ ਨੂੰ ਹੀ ਪਤਾ ਹੈ, ਬੜਾ ਨੋਰਮਲ ਜੀ ਚੀਜ਼ ਹੈ. ਬਟ ਪੇਪਰ ਲਈ ਕੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਹੈ ਕਿ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਕਿਉਂ ਸੀ. ਤਾਂ ਦੇਖੋ 2 ਨੈਸ਼ਨਲ ਲੀਡਰ ਸੀਗੇ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਾਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣੇ ਚਾਹੀਦੇ ਹੈ, ਡਾਕਟਰ ਸਤਿਆਪਾਲ ਐਂਡ ਡਾਕਟਰ ਸੈਫੂਦੀਨ ਕਿਚਲੂ. ਓਕੇ, ਇਹ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਬਹੁਤ ਫੇਵਰੇਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਦੋਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਨਾ ਅਰੈਸਟ ਕਰ ਲਿਆ ਗਿਆ ਸੀਗਾ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਵੱਲੋਂ, ਤੇ ਇਸੇ ਦਾ ਹੀ ਵਿਰੋਧ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹ ਜਲਿਆਂਵਾਲਾ ਬਾਗ ਵਿੱਚ ਇਕੱਠੇ ਹੋਏ ਸੀ. ਓਕੇ, ਔਰ ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਜੋ ਕਿ ਅਕਸਰ ਹੀ ਬਣਦਾ ਹੈ. ਦੇਖੋ ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈਗਾ ਸੀ ਇੱਥੇ ਗੋਲੀਆਂ ਚਲਾਈਆਂ ਗਈਆਂ ਹੈ ਨਾ ਸਾਰੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਤਾਂ ਇਹ ਕਿਸ ਨੇ ਚਲਾਈਆਂ, ਪਹਿਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਹੈ. ਦੂਸਰਾ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਜੋ ਗੋਲੀਆਂ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚਲਾਉਣ ਦਾ ਆਰਡਰ ਕਿਸ ਨੇ ਦਿੱਤਾ. ਤਾਂ ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਆਨਸਰ ਜੋ ਨੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਰਹਿਣਗੇ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਦੇਖੋ ਨਿਹੱਥੇ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਉੱਪਰ ਜੋ ਜਨਰਲ REHDYER ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ, ਡਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਅਡਵਾਇਰ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਆਪਾਂ ਨੂੰ ਪ੍ਰੋਬਲਮ ਹੁੰਦੀ ਹੈ. ਇਹ ਜੋ ਡਾਇਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਆਰਡਰ ਕੀਤਾ ਸੀਗਾ. ਓਕੇ, ਔਰ ਫਿਰ ਜੋ ਫਾਇਰਿੰਗ ਹੈ ਉਹ ਕਿਸਨੇ ਕੀਤੀ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ ਜਨਰਲ O ਡਾਇਰ ਵੱਲੋਂ. ਓਕੇ, ਐਂਡ ਇਹ ਦੋਨੋਂ ਹੀ ਕੁਐਸਚਨ ਤੁਸੀਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟਲੀ ਯਾਦ ਰੱਖਣੇ ਹੈ. ਔਰ ਜਦੋਂ ਇਹ ਵਾਲਾ ਮੈਸੇਕਰ ਹੋਇਆ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਵਿੰਦਰਨਾਥ ਟੈਗੋਰ ਹੈਗੇ ਆ ਇੰਨੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰੋਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆ ਗਏ ਕਿ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਿਟਿਸ਼ ਹਕੂਮਤ ਵੱਲੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਉਪਾਧੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਨਾਈਟਹੁੱਡ ਦੀ ਉਪਾਧੀ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇਹ ਵਾਲੀ ਉਪਾਧੀ ਨੂੰ ਫਿਰ ਛੱਡ ਦਿੱਤਾ ਸੀ. ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਾਂਗੇ, ਕੈਪੀਟਲ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ, CM ਅਮਰਿੰਦਰ ਸਿੰਘ ਐਂਡ ਗਵਰਨਰ ਹੈਗੇ VP ਸਿੰਘ ਬਦਨੌਰ. ਓਕੇ, ਤਾਂ ਕੁਝ ਕਰੰਟ ਦੇ ਕੁਐਸਚਨਸ ਨੂੰ ਡਿਸਕਸ ਕਰਦੇ ਆ. ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਨਾ ਕੋਵੈਕਸ ਜੋ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਜੁਆਇਨ ਕਰਨਗੇ. ਓਕੇ, ਔਰ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਲੈਵਲ ਦੇ ਉੱਪਰ ਇੱਕ ਫੈਸਿਲਿਟੀ ਹੈ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ. ਓਕੇ,
ਇਹ ਕਿਉਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈ? ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਕੋਵਿਡ ਦੀ ਵੈਕਸੀਨ ਦੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸ਼ੋਰਟੇਜ ਚੱਲ ਰਹੀ ਸੀਗੀ ਤੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਇਹਦੀ ਜੋ ਡਿਲੀਵਰੀ ਹੈ ਉਹਨੂੰ ਇਨਕਰੀਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾ ਸਕੇ, ਇਸੇ ਦੇ ਕਰਕੇ ਹੀ ਐਸ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਨੂੰ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਜੋ ਹੈ ਜੁਆਇਨ ਕੀਤਾ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਸੋਨੂ ਸੂਦ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੋ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਥਿੰਗਸ ਹੈ ਜਿਹਦੇ ਲਈ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਬਣਾਇਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਇੱਕ ਤਾਂ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਕੋਵਿਡ ਵੈਕਸੀਨੇਸ਼ਨ ਦਾ ਕੈਂਪੇਨ। ਓਕੇ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਜੋ ਆਪਣਾ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹਦੇ ਵੀ ਜੋ ਐਂਬੈਸਡਰ ਨੇ ਨਾ ਉਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਆ? ਸੋਨੂ ਸੂਦ ਹੀ ਰਹਿਣਗੇ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ DSR ਟੈਕਨੀਕ ਨੂੰ ਇਸ ਸਾਲ ਲਾਂਚ ਕਰਨਗੇ। DSR ਕੀ ਹੈ? ਡਾਇਰੈਕਟ ਸੀਡਿੰਗ ਆਫ ਰਾਈਸ ਟੈਕਨੀਕ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅੱਜ ਕੱਲ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿ ਪਹਿਲਾਂ ਉਹਨੂੰ ਇੱਕ ਜਗ੍ਹਾ ਦੇ ਉੱਪਰ ਬੀਜਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਨਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਜਿਹੜੇ ਹੁੰਦੇ ਜੋ ਸੀਡਸ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹ ਜਰਮੀਨੇਟ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਫਿਰ ਉਹਨਾਂ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ ਪੌਦਿਆਂ ਨੂੰ ਤੋੜ ਕੇ ਦੁਬਾਰਾ ਤੋਂ ਫਿਰ ਤੋਂ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਪਰ ਇਸ ਵਾਰੀ ਕੀ ਹੋਣਾ ਹੈ, ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਜਰਮੀਨੇਟ ਕੀਤੇ ਹੋਏ ਸੀਡਸ ਹੋਣਗੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਹੀ ਲਗਾ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏਗਾ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਦੇ ਨਾਲ ਖੇਤਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਦੇਖੋ ਟਾਈਮ ਤਾਂ ਬਚੇਗਾ ਹੀ, ਪਰ ਮੇਨ ਕੀ ਕਹਿ ਰਹੀ ਹੈ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ? ਇਹ ਬੋਲ ਰਹੇ ਹੈਗੇ ਆ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਟੈਕਨੀਕ ਇਸ ਕਰਕੇ ਲੈ ਕੇ ਆ ਰਹੇ ਹਾਂ ਕਿਉਂਕਿ ਕੋਵਿਡ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਕਾਫੀ ਸਾਰੇ ਜੋ ਵਰਕਰ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਮਾਈਗ੍ਰੈਂਟ ਸੀਗੇ, ਹੈ ਨਾ, ਵਾਪਸ ਚਲੇ ਗਏ ਆਪਣੇ ਜੋ यूपी बिहार वाली साइड, ਤਾਂ ਫਿਰ ਇੱਥੇ ਹੁਣ ਵਰਕਰਸ ਦੀ ਕਮੀ ਹੈਗੀ ਹੈ, ਇਸ ਕਰਕੇ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਕਮੀ ਨੂੰ ਪੂਰਾ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਦੀ ਹੈਲਪ ਲਈ ਜਾਣੀ ਹੈ DSR ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਅਰਹਿਤਿਅਸ, ਇਹ ਤੁਹਾਨੂੰ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅੱਛੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰਮ ਯਾਦ ਰਹਿਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ? ਅਰਹਿਤਿਅਸ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਇਹ ਇਨਵੋਲਵ ਕਰਨਗੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਪੇਮੈਂਟ ਫਾਰਮਰਸ ਨੂੰ ਕਰਨ ਲਈ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਧਾ ਪੇਮੈਂਟ ਪਾਈ ਜਾਏ, ਇਸ ਦੇ ਲਈ ਇਹ ਅਰਹਿਤਿਆਸ ਨੂੰ ਯੂਜ਼ ਕਰਨਗੇ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਹੁਣ ਇਹ ਅਰਹਿਤਾ ਹੁੰਦਾ ਕੀ ਹੈ? ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਪਹਿਲਾਂ ਤਾਂ ਜੋ ਸੈਂਟਰ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬੋਲ ਦਿੱਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਹੈ ਨਾ ਇਹ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡਾ ਕਹਿਣਾ ਨਹੀਂ ਮੰਨਾਂਗੇ, ਅਸੀਂ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਡਾਇਰੈਕਟ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਖਾਤਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਕਰਾਂਗੇ। ਓਕੇ, ਔਰ ਅਰਹਿਤਿਆਸ ਨਾ ਇੱਕ ਕਮਿਸ਼ਨ ਏਜੰਟ ਹੁੰਦੇ ਨੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲਾਂ ਯੂਜ਼ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ ਕਿਸਾਨਾਂ ਨੂੰ ਪੇਮੈਂਟ ਦੇਣ ਦੇ ਲਈ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੀ ਹੁਣ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ ਕਿ ਮਿਨੀਮਮ ਸਪੋਰਟ ਪ੍ਰਾਈਸ ਦੇ ਲਈ ਵੀ ਇਨਵੋਲਵ ਕੀਤਾ ਜਾਊਗਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਪੈਨ ਸਿਟੀ ਪਬਲਿਕ ਬਾਈਕ ਸ਼ੇਅਰਿੰਗ ਪ੍ਰੋਜੈਕਟ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਐਂਡ ਅੱਛਾ ਇਨੀਸ਼ੀਏਟਿਵ ਹੈ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਦਾ। ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ 1200 ਬਾਈਕਸ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਨਾ ਸਟੇਸ਼ਨ ਬਣਾਏ ਗਏ ਛੋਟੇ ਛੋਟੇ, ਕਰੀਬ 155 ਡੌਗ ਸਟੇਸ਼ਨ ਮਿਲਣਗੇ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪੂਰੇ ਹੀ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ। ਓਕੇ, ਤੇ ਇੱਥੇ ਨਾ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਸਾਈਕਲ ਰੱਖੇ ਗਏ ਹੈ, ਤੁਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਸਾਈਕਲਸ ਨੂੰ ਉਠਾ ਕੇ ਪੂਰੀ ਸਿਟੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਤੇ ਵੀ ਘੁੰਮ ਸਕਦੇ ਹੋ ਯੂਜ਼ ਕਰਕੇ, ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਨੈਕਸਟ ਡੌਕ ਦੇ ਉੱਪਰ ਤੁਸੀਂ ਉਹਨੂੰ ਛੋੜ ਸਕਦੇ ਹੋ। ਓਕੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸ ਲਈ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਤਾਂ ਕਿ ਜੋ 에ਅਰ ਪੋਲਿਊਸ਼ਨ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਚੰਡੀਗੜ੍ਹ ਦੇ ਵਿੱਚ ਘਟਾਇਆ ਜਾ ਸਕੇ। ਆਲਰਾਈਟ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 2, ਆਰਮੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਪੁਣੇ ਹੈਜ਼ ਬੀਨ ਨੇਮਡ ਆਫਟਰ ਹੋਮ। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कि जो पुणे ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਰਮੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਾ ਇਸ ਦਾ ਨਾਮ ਹੁਣ ਕਿਸ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਤਾਂ ਇਹ ਰਹਿਣਗੇ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਡਿਫੈਂਸ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੇ ਰਾਜਨਾਥ ਸਿੰਘ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਸਟੇਡੀਅਮ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਹੈਗਾ ਆਰਮੀ ਸਪੋਰਟਸ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਦਾ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਇਹ ਜੋ ਇੰਸਟੀਚਿਊਟ ਹੈ ਨਾ ਇਹਦਾ ਮੇਨ ਫੋਕਸ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਹੈ? ਉਹਨਾਂ ਸਾਰੇ ਹੀ ਨੌਜਵਾਨਾਂ ਨੂੰ ਆਇਡੈਂਟੀਫਾਈ ਕਰਨਾ ਜੋ ਕਿ ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਅੱਛਾ ਪ੍ਰਦਰਸ਼ਨ ਕਰ ਸਕਦੇ ਨੇ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚ ਕੈਲੀਬਰ ਹੈਗਾ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ 11 ਸਪੋਰਟਸ ਦੇ ਡਿਸਿਪਲਸ ਦੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਟ੍ਰੇਨਿੰਗ ਦਿੱਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਔਰ ਜੋ ਇੰਡੀਅਨ ਆਰਮੀ ਹੈ ਨਾ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇੱਕ ਨਾ ਮਿਸ਼ਨ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮਿਸ਼ਨ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਦੋਂ? 2001 ਦੇ ਵਿੱਚ। ਆਲਰਾਈਟ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਗਿਆ? ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਏਮ ਹੈ ਕਿ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਔਰ ਬਾਕੀ ਜੋ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਇਵੈਂਟ ਹੁੰਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਾ ਅਸੀਂ ਮੈਡਲ ਵਿਨਿੰਗ ਪਰਫਾਰਮੈਂਸ ਦੇਣੀ ਹੈ। ਓਕੇ, ਹਾਂਜੀ, ਹੁਣ ਅਗਰ ਆਪਾਂ ਕਰੰਟ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਤਾਂ ਸਭ ਤੋਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕੁਐਸਚਨ ਹੈ ਫਸਟ ਵਾਲਾ ਹੀ। ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਜੋ ਹੈਗੇ ਆ ਇਹਨਾਂ ਨੇ 골ਡ ਮੈਡਲ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤਾ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਟੋਕੀਓ ਓਲੰਪਿਕਸ ਵਿੱਚ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਭਾਲਾ ਫੇਂਕਿਆ ਸੀ 87.58 ਮੀਟਰ ਦੂਰ। ਓਕੇ, ਤਾਂ ਜਿਹੜੇ ਸਟੂਡੈਂਟ ਅੱਜ ਫਸਟ ਟਾਈਮ ਇਸ ਸੈਸ਼ਨ ਨੂੰ ਦੇਖ ਰਹੇ ਆ ਨਾ ਤਾਂ ਇਸੇ ਹੀ ਐਰੂਡੀਸ਼ਨ ਸਟੱਡੀਜ਼ ਦੀ ਪਲੇਲਿਸਟ ਹੈਗੀ ਹੈ ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਹਾਨੂੰ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ 2 ਲੈਕਚਰ ਮਿਲਨੇ ਆ। ਇਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਹੈਗਾ ਇੱਕ ਤਾਂ ਪ੍ਰੀ ਓਲੰਪਿਕਸ, ਇੱਕ ਪੋਸਟ ਓਲੰਪਿਕਸ। ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਓਲੰਪਿਕਸ ਹੈ ਇਸ ਟਾਈਮ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਰਨਿੰਗ ਟੌਪਿਕ ਹੈ, ਇਸ ਲਈ ਤੁਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜ਼ਰੂਰ ਹੀ ਦੇਖ ਲੈਣਾ, ਦੋਨਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਹੀ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲੋਂ ਪੇਪਰਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕੁਐਸਚਨਸ ਪੁੱਛੇ ਜਾਣੇ ਆ। ਓਕੇ, ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਰਿਜ਼ਰਵ ਬੈਂਕ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ ਇਹਨਾਂ ਦੀ ਨਾ ਇੱਕ ਕੈਂਪੇਨ ਚੱਲ ਰਿਹਾ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕੈਂਪੇਨ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ
ਉਹਦੇ ਲਈ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਬ੍ਰਾਂਡ ਐਂਬੈਸਡਰ ਚੁਣਿਆ ਹੈਗਾ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਨੂੰ ਹੀ, ਠੀਕ ਹੈ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਅਵੇਅਰਨੈਸ ਕਾਦੀ ਦਿੱਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ ਕਿ ਜੋ ਡਿਜੀਟਲ ਬੈਂਕਿੰਗ ਦੇ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਨਾ, ਆਨਲਾਈਨ ਫਰੋਡ ਹੁੰਦੇ ਆ ਬੈਂਕਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਹਦੇ ਬਾਰੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਪਬਲਿਕ ਨੂੰ ਅਵੇਅਰ ਕੀਤਾ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਔਰ ਇਹ ਕੌਣ ਕਰਨਗੇ? ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਐਥਲੈਟਿਕ ਫੈਡਰੇਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਡਿਸਾਈਡ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ 7 ਅਗਸਤ ਨੂੰ ਹਰ ਸਾਲ ਜੈਵਲਿਨ ਥਰੋ ਡੇ ਦੇ ਰੂਪ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਨਾਇਆ ਜਾਏਗਾ। ਤਾਂ 7 ਅਗਸਤ ਕਿਉਂ? ਕਿਉਂਕਿ ਐਸੇ ਦਿਨ ਹੀ ਜੋ ਨੀਰਜ ਚੋਪੜਾ ਹੈਗੇ ਆ, ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ 골ਡ ਮੈਡਲ ਦਿਲਵਾਇਆ ਸੀ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਦੇਖੋ ਜਦੋਂ ਦਾ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਪਾਰਟਿਸਿਪੇਟ ਕਰਨਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਓਲੰਪਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਪਹਿਲੀ ਵਾਰੀ ਆਪਾਂ ਜੋ ਐਥਲੈਟਿਕਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂ ਫਿਰ ਟਰੈਕ ਇਵੈਂਟ ਦੇ ਵਿੱਚ 골ਡ ਲੈ ਕੇ ਆਏ ਆ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਹਰਿਆਣਾ ਗਵਰਨਮੈਂਟ ਨੇ ਇੱਕ ਪੈਰਾਗਲਾਈਡਿੰਗ ਕਲੱਬ ਹੈ, ਇਸ ਨੂੰ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਕਿੰਨਾ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ? ਮਿਲਖਾ ਸਿੰਘ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਠੀਕ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੀ ਹਾਲ ਹੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਡੈਥ ਹੋਈ ਹੈ। ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਮੋਹਾਲੀ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਹਾਕੀ ਸਟੇਡੀਅਮ, ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਰੱਖਿਆ ਗਿਆ ਬਲਬੀਰ ਸਿੰਘ ਸੀਨੀਅਰ ਜੀ ਦੇ ਨਾਮ ਦੇ ਉੱਪਰ, ਓਕੇ। ਤੇ ਦੇਖੋ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਰਿਲੇਟਡ ਤੁਹਾਨੂੰ ਜਨਵਰੀ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਜੂਨ ਤੱਕ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰਸ ਜੋ 6 ਮਹੀਨਿਆਂ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕਰਦੇ ਆ ਨਾ, ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਲਈ ਟੋਟਲ 4 ਵੀਡੀਓਜ਼ ਨੇ ਜੋ ਕਿ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਲੇਲਿਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਲ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰੂਰ ਦੇਖ ਲੈਣਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਰ ਇੱਕ ਐਗਜ਼ਾਮ ਦੇ ਲਈ ਉਹ ਵਾਲੀਆਂ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹਿਣਗੀਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਪੈਸੀਫਿਕਲੀ ਬਣਾਇਆ ਹੀ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗਿਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰੰਟ ਅਫੇਅਰ ਨੂੰ ਕਵਰ ਕੀਤਾ ਜਾਏ, ਓਕੇ। ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 3, ਵਿਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਹੈਜ਼ ਇੰਟਰੋਡਿਊਸਡ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ। ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਦੀ ਜੋ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਹੈ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਹੜੇ ਮੰਤਰਾਲੇ ਨੇ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਹੈ? ਰਾਈਟ, ਤਾਂ ਇਹ ਹੋ ਜਾਏਗਾ ਮਿਨਿਸਟਰੀ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਹੁਣ ਨਵੇਂ ਵਹੀਕਲ ਆਣਗੇ, ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਲਈ ਇੱਕ ਭਾਰਤ ਸੀਰੀਜ਼ ਨੂੰ ਸਟਾਰਟ ਕਰ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਓਕੇ। ਤੇ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੋਣਾ ਕੀ ਹੈ, ਉਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਵਾਹਨਾਂ ਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕੀਤੀ ਜਾਣੀ ਹੈ। ਔਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਾ ਫਿਰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਜੋ ਨਵਾਂ ਮਾਰਕ ਲੈਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ ਪਹਿਲਾਂ, ਹੈ ਨਾ, ਹੁਣ ਇਹ ਨਹੀਂ ਲੈਣਾ ਪਊਗਾ, ਓਕੇ। ਔਰ ਜੋ BH ਮਾਰਕ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਵਾਲੇ ਸਾਰੇ ਵਹੀਕਲ ਜਿਹੜੇ ਹੋਣਗੇ, ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦੂਸਰੇ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਸ਼ਿਫਟ ਕਰਨਾ ਨਾ, ਉਦੋਂ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦਾ ਮਾਰਕ ਲੈਣ ਦੀ ਕੋਈ ਲੋੜ ਨਹੀਂ ਹੋਏਗੀ, ਓਕੇ। ਇਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਕੀ ਹੁੰਦਾ ਸੀਗਾ, ਆਪਣਾ ਜੋ ਮੋਟਰ ਵਹੀਕਲ ਐਕਟ ਹੈ 1988 ਦਾ, ਠੀਕ ਹੈ, ਇਹਦੀ ਧਾਰਾ ਹੈਗੀ ਹੈ 47। ਇਹਦੇ ਤਹਿਤ ਬੋਲਿਆ ਜਾਂਦਾ ਸੀ ਵੀ ਜੇਕਰ ਕੋਈ ਵੀ ਵਿਅਕਤੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਾਂਦਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ, ਤੇ ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕੀ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ, ਇਹ ਵਾਲਾ ਜੋ ਵਹੀਕਲ ਹੈ ਇਹਦੀ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਤਾਂ ਕਰਵਾਉਣੀ ਪੈਂਦੀ ਸੀ। ਅਦਰਵਾਈਜ਼ 12 ਮਹੀਨੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉਸ ਵਹੀਕਲ ਨੂੰ ਫਿਰ ਆਪਾਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨਹੀਂ ਰੱਖ ਸਕਦੇ ਸੀ, ਓਕੇ। ਤੇ ਹੁਣ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਕੀ ਬੋਲਿਆ ਕਿ 12 ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਅੰਦਰ ਅੰਦਰ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਨਵਾਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਕਰਵਾਉਣਾ ਪੈਂਦਾ ਸੀ। ਔਰ ਇਹ ਜੋ BH ਨੰਬਰ ਹੋਏਗਾ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹ ਨਵੀਂ ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਹੈ, ਓਕੇ। ਹਾਂਜੀ, ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਚੀਜ਼ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲਓ ਕਿ ਜੋ BH ਸੀਰੀਜ਼ ਹੈ, ਇਹਨੂੰ ਕੌਣ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ? ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਟਰ, ਸਟੇਟ ਜਾਂ ਫਿਰ ਜਿੰਨੇ ਵੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਫਰਮ ਦੇ ਹੋਣਗੇ, ਪਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲੇ? ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ 4 ਜਾਂ ਫਿਰ ਇਸ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਾਜਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਆਫਿਸ ਹੋਣਗੇ ਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਾਰੇ ਹੀ ਕਰਮਚਾਰੀ ਇਹਦੇ ਲਈ ਅਪਲਾਈ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ। ਔਰ ਇਸ ਸੁਵਿਧਾ ਦੇ ਨਾਲ ਕੀ ਹੋਣਾ ਆ, ਫ੍ਰੀ ਜੋ ਟ੍ਰਾਂਸਫਰ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਕੀਤੀ ਜਾਏਗੀ ਇੱਕ ਸਟੇਟ ਤੋਂ ਦੂਸਰੀ ਸਟੇਟ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਔਰ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਵਹੀਕਲ ਟੈਕਸ ਜੋ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਹੈ ਕਿੰਨੇ ਟਾਈਮ ਬਾਅਦ ਲੱਗੇਗਾ। ਤੈਨੂੰ 2 ਜਾਂ ਫਿਰ 2 ਦੇ ਮਲਟੀਪਲ, ਯਾਨੀ 2, 4, 6, 8 ਐਦਾਂ ਦੇ ਸਾਲਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲਗਾਇਆ ਜਾਣਾ ਹੈ, ਠੀਕ ਹੈ। ਇਹ ਇੰਪੋਰਟੈਂਟ ਰਹੇਗਾ, ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਯਾਦ ਰੱਖੋਗੇ ਪੇਪਰ ਪੁਆਇੰਟ ਆਫ ਵਿਊ ਨਾਲ, ਕਿ ਜਦੋਂ 14 ਸਾਲ ਪੂਰੇ ਹੋ ਜਾਣਗੇ ਨਾ BH ਰਜਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਦੇ, ਤਾਂ ਉਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਜੋ ਟੈਕਸ ਹੈ ਫਿਰ ਉਹ ਹਰ ਇੱਕ ਸਾਲ ਲਗਾਇਆ ਜਾਊਗਾ, ਓਕੇ। ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਮਿਨਿਸਟਰ ਆਫ ਰੋਡ ਟਰਾਂਸਪੋਰਟ ਐਂਡ ਹਾਈਵੇਜ਼, ਇਹ ਕੌਣ ਹੈਗੇ ਹੈ? ਨਿਤਿਨ ਜੈਰਾਮ ਗਡਕਰੀ, ਆਲਰਾਈਟ। ਹਾਂਜੀ, ਕੁਐਸਚਨ ਨੰਬਰ 4, India has won the elections for membership of 2 key bodies of which organization? ਤਾਂ ਭਾਰਤ ਨੇ ਕਿਹੜੀ ਸੰਸਥਾ ਦੀਆਂ 2 ਪ੍ਰਮੁੱਖ ਯੂਨਿਟਸ ਦੀਆਂ ਚੋਣਾਂ ਨਾ ਹੁਣੇ ਜਿੱਤੀਆਂ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹ ਰਹੇਗੀ UPU, ਮਤਲਬ ਯੂਨੀਵਰਸਲ ਪੋਸਟਲ ਯੂਨੀਅਨ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇੰਡੀਆ ਨੇ ਹੁਣੇ ਇਹਦੀ ਮੈਂਬਰਸ਼ਿਪ ਦੇ ਜਿਹੜੇ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਹੋਏ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਜਿੱਤਿਆ। ਔਰ UPU ਦੀ 27th ਨੰਬਰ ਦੀ ਨਾ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ UPU ਕਾਂਗਰਸ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਹੀ ਇਲੈਕਸ਼ਨ ਕਰਵਾਏ ਗਏ, ਰਾਈਟ। ਔਰ ਇਹ ਹੋਈ ਕਿੱਥੇ ਹੈ, ਇਹ ਤੁਸੀਂ ਯਾਦ ਰੱਖ ਲੈਣਾ, ਇਹ ਮਿਲੇਗੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਆਬਿਦਜਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਓਕੇ। ਤਾਂ ਐਸੇ ਹੀ ਮੀਟਿੰਗ ਦੇ ਦੌਰਾਨ ਇੰਡੀਆ ਨੇ 156 ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਨਾ 134 ਵੋਟਾਂ ਹਾਸਿਲ ਕੀਤੀਆਂ ਅਲੱਗ-ਅਲੱਗ ਦੇਸ਼ਾਂ ਦੀਆਂ, ਆਲਰਾਈਟ। ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਫਿਰ ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਜਿੱਤ ਲਿਆ, ਹੈ ਨਾ। ਤੇ ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਹੁਣ ਕਾਉਂਸਿਲ ਆਫ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ, ਯਾਨੀ ਕਿ ਇਹਨੂੰ ਵੈਸੇ CA ਬੋਲਦੇ ਨੇ ਸ਼ਾਰਟ ਫਾਰਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਇਹਦੇ ਵਿੱਚ ਚੁਣਿਆ ਗਿਆ। ਔਰ ਇੰਡੀਆ ਨੂੰ ਸਾਊਥ ਏਸ਼ੀਆ ਐਂਡ ਓਸ਼ੀਆਨੀਆ ਦਾ ਜਿੰਨਾ ਵੀ ਰੀਜਨ ਹੈ ਨਾ,
इस दे विच सब तो ज़्यादा वोट मिले। ओके, और इहदे तो बिना दूसरी फिर किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन हो जाएगी, ये है पोस्टल ऑपरेशन काउंसिल। ओके, इहनूं POC ही बोलते हैं, इहदे लई भी इंडिया नूं हुण चुन लिया गया। ओके, अगर आपां यूनीवर्सल पोस्टल यूनियन की गल करते हैं, इहनूं फाउंड किया गया 9 अक्टूबर 1874। हैडक्वार्टर है बर्न स्विट्जरलैंड दे विच एंड डायरैक्टर जनरल मिलणगे तुहानूं M मैटेको। ओके, अगर आपां करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो इंडिया जो है इनू UN इकोसोक दियां 3 बॉडीज दे विच ना इलैक्ट किया गया। ओके, तो ये विच किहड़ियां 3 बॉडीज है, कमीशन ऑन क्राइम प्रिवेंशन एंड क्रिमिनल जस्टिस एक होगी, एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ UN एंटिटी फॉर जेंडर इक्वैलिटी 2, एम्पावरमेंट ऑफ विमेन एंड एग्जीक्यूटिव बोर्ड ऑफ वर्ल्ड फूड प्रोग्राम। ये तुहानूं याद करने ही पैणगे। ओके, बिकॉज इन्हां दी कोई पंजाबी नहीं हुंदी, ये तां नाम ने है ना। तो इहदे विच तुसीं ना कीवर्ड लै लो, जिद्दां कि एक लै लो क्राइम प्रिवेंशन, ठीक है, इस तो बिना तुसीं लै सकदे हो जेंडर इक्वैलिटी एंड तीसरा तुसीं लै सकदे हो फूड प्रोग्राम। ओके, इन्हां तिन्नां दे विच ही इंडिया नूं चुनिया गया। इस तो बिना इंडिया नूं सिलैक्ट किया गया यूनाइटेड नेशन दी इकोसोक काउंसिल दे लई 2022 तो लैके 2024 तक दी टर्म दे लई। ओके, और जो अपूर्व चंद्रा है ना, ये अपने लेबर सैक्रटरी ने, इन्हां नूं इलैक्ट किया गया चेयरमैन के तौर के उपर। ठीक है, किहड़ी ऑर्गेनाइजेशन दे विच, ILO इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन, और ये अक्टूबर 2020 तो लैके और जून 2021 तक चेयरमैन रहे सी। ऑलराइट, तो इंडिया ने ये वाली पोजीशन 35 साल बाद हासिल की सी। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 5, वेयर इंडियाज फर्स्ट ग्रीन हाइड्रोजन इलैक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री हैज़ बीन एस्टैब्लिश्ड। तो यह पहली है, तो ऑब्वियसली अपने लिए इंपॉर्टेंट रहेगी। भारत की पहली हरित हाइड्रोजन इलैक्ट्रोलाइजर गीगा फैक्ट्री इनू कित्थे लगाया गया, तो ये लगाई गई है बेंगलुरु दे विच। ठीक है, तो एक अमेरिका की कंपनी है जिसका नाम है ओहोमियम इंटरनेशनल। ठीक है, इन्हों ने बोलिया है कि बेंगलुरु कर्नाटका दे विच इंडिया की पहली जो है ना ये वाली गीगा फैक्ट्री इनू असीं स्टार्ट करांगे। ओके, और ये फैक्ट्री इंडिया दे विच ही निर्मित PEM, ये तुसीं टर्म याद रख लेना। ओके, ये रहेगी प्रोटोन एक्सचेंज मैम्ब्रेन। ओके, ये वाली जो हाइड्रोजन है ना, इहदे इलैक्ट्रोलाइजर का ये निर्माण करेगी। और इस गीगा फैक्ट्री की जो स्टार्टिंग दे विच कैपेसिटी रहेगी ये होएगी 500 मेगावाट। ओके, ये पर ईयर की गल कर रही हूँ मैं। इस तो बाद की होना है, हर एक साल इहदी ना 2 गीगावाट जो कैपेसिटी है इनू वधा दिता जाना है। ओके, और जो ग्रीन हाइड्रोजन होंदी है इनू बनाने वास्ते PEM टेक्नोलॉजी बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है। क्यों? क्योंकि ये पानी नू ना हाइड्रोजन ते ऑक्सीजन दे विच ब्रेक करती है। ओके, तो फिर ये ना इहदे वास्ते रिन्यूएबल रिसोर्स जो होंदे है उन्हां दा यूज़ करती है। ठीक है, रिन्यूएबल मतलब जिन्हां नू आपां दोबारा वरत सकते हैं, और इसे ही टेक्नोलॉजी का यूज़ किया जाएगा इस गीगा फैक्ट्री के अंदर। ऑलराइट, रीसेंट न्यूज़ देखिए तो जो इंटरनेशनल एनर्जी की एजेंसी है इन्होंने रिलीज़ की 2021 रिन्यूएबल एनर्जी मार्केट अपडेट। ओके, और ये जो एजेंसी है इन्होंने की बोलिया है कि ना फोरकास्ट करते हैं असी कि 25% तक जो सोलर एनर्जी है और विंड एनर्जी है इन्हों पूरी दुनिया दे विच यूज़ किया जान लग जाएगा। ठीक है, यानी 25% ज़्यादा यूज़ की जाएगी आने वाले टाइम दे विच। इस तो बाद जो UK है इन्होंने पूरी दुनिया का सब तो पावरफुल क्लाइमेट चेंज फोरकास्टिंग सुपर कंप्यूटर, ठीक है, इनू बनाना है। दैन द वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम इन्होंने रिलीज़ किया एक इंडेक्स, नाम है ग्लोबल एनर्जी ट्रांजिशन। ओके, और ये की होया टॉप किन्ने किया, स्वीडन ने। ठीक है, सैकेंड नंबर के उपर रहा नॉर्वे, थर्ड ते रहा डेनमार्क। और अगर आप इंडिया की गल करते हैं तो इंडिया का जो रैंक है ये रहा 87 नंबर। टोटल किन्नियां कंट्रीज़ नूं इन्होंने जो इवैल्यूएट किया सी 115। ओके, और फेसबुक ने इंडिया दे विच पहला रिन्यूएबल प्रोजेक्ट इनू स्टार्ट किया है। ठीक है, ये इन्होंने ना एक डील साइन की है, लोकल फर्म है जिसका नाम है क्लीन मैक्स। ओके, ये दोनों जने हुण इकट्ठे काम करनगे रिन्यूएबल एनर्जी नूं इलैक्ट्रिक एनर्जी दे विच कन्वर्ट करन दे लई। ओके, और फिर जो इलैक्ट्रिसिटी होएगी ये इंडिया दे विच जिन्ने भी ग्रिड हैगे ने, ठीक है, वो बिजली के जिहड़े घर ने उन्हां दे विच जो है ट्रांजिट किया जाऊगा। और ये जो प्रोजेक्ट है ये कित्थे लगाया गया है, कर्नाटका दे विच। इस तो बाद एक बिल आया है, बिल टू अमेंड इलैक्ट्रिसिटी एक्ट। ठीक है,
ਇਹਨੂੰ ਸੈਂਡ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਹੈਗਾ ਆ कि एंदी जो है मतलब अप्रूवल लैन दे लई। ऑलराइट, तो इस बिल का एग्जैक्ट नाम रहेगा इलैक्ट्रिसिटी अमेंडमेंट बिल 2021। ऑलराइट, क्वेश्चन नंबर 6, रिपोर्ट टाइटल्ड द क्लाइमेट क्राइसिस इज अ चाइल्ड राइट क्राइसिस इज रिलीज्ड बाय विच ऑर्गेनाइजेशन। तो इस नाम की जो रिपोर्ट है एक केड़ी संस्था ने लॉन्च की, ठीक है, तो ये रहेगी यूनिसेफ। ओके, तो जो यूनिसेफ ने हाल ही दे विच वाली रिपोर्ट किहड़े बच्चों लिए जारी की है, वो वाली कंट्रीज़ जिन्हां दे विच ना बच्चे क्लाइमेट चेंज की समस्या दे नाल बहुत बुरी तरह हाई रिस्क के उपर हैगे ने, ठीक है, इन्हां दी रिपोर्ट जारी की गई है। तो अफसोस की गल है कि जो इंडिया है ना ये टॉप 33 देशों के विच आया है जिस दे विच कि क्लाइमेट चेंज ने बच्चों ने बहुत बुरा हाल किया होया। ओके, और अप्रॉक्सीमेटली जो 1 बिलियन चिल्ड्रन ने ना ये पूरे इंडिया दे विच मार झेल रहे हैगे एस क्लाइमेट चेंज दी। ओके, और ऐसे करके इन्हां दी जो पढ़ाई है या इन्हां दी जो प्रोटैक्शन है, इन्हां दी हैल्थ है, इस दे उपर बहुत ही बुरा असर हो रहा है। ओके, और साउथ एशिया दे विच अगर आपां गल करिए तो टॉप 4 कंट्रीज़ दे विच इंडिया का नाम आ रहा है। पहले नंबर के उपर तो रही है पाकिस्तान, फिर है बांग्लादेश, फिर है अफगानिस्तान, तो चौथे नंबर के उपर है इंडिया। पर अगर आप ओवरऑल गल करते हैं तो इंडिया 26वें नंबर के उपर है क्लाइमेट चेंज के बच्चों को बुरा असर देने वाला कंट्री। ओके, और इस रिपोर्ट के विच की बोलिया गया है, ये भी कहा गया है कि जेकर एक बारी पूरे ग्लोब का यानी दुनिया का टैंपरेचर 2 डिग्री सैल्सियस जे इत्थे किते पहुँच गया ना तो इंडिया की बहुत बुरी हालत होने वाली है। इंडिया दे विच करीब 600 मिलियन ऐदा की जनता होगी जो कि पानी नूं लै ही नहीं पाएगी, आपां नूं पीण लई पानी भी नहीं नसीब होना। ओके, इस दे नाल नाल इन्हां ने बोलिया है कि जेड़े अपने शहरी खेतर होणगे ना अर्बन एरियाज़ उन्हां दे विच बहुत ही ज़्यादा फिर फ्लड की सिचुएशन देखने को मिलूगी तो किन्नियां ही सिटीज़ होणगियां इंडिया दियां जो कि समुद्रां दे विच समा जानियां। ओके, तो ये साडे वास्ते फिर बहुत ही वड्डी खतरे की घंटी हैगी है तो आपां नूं अज ही जो क्लाइमेट चेंज की समस्या है इहदे नाल निपटना ही पैना है। ओके, तुसीं खुद ही देख लो, तुहानूं पता ही होगा कि कुछ देर पहला एक रिपोर्ट आई सी है ना, इस दे विच ना वर्ल्ड दियां जो टॉप 30 कंट्रीज़ की ना एक लिस्ट आई जिस दे विच ना सब तो ज़्यादा एयर पोल्यूशन होवे। ओके, तो टॉप 30 दे विच जो 21 सिटीज़ है ना ये कलियां इंडिया दी ही सीगियां, तां तुसीं समझ सकते हो कि इंडिया दी जो क्लाइमेट है उनका कितना बुरा हाल होगा इस टाइम, है ना। ओके, तो जो यूनिसेफ है इनका हैडक्वार्टर कित्थे मिलेगा, न्यूयॉर्क USA दे विच। इंडिया के रिप्रेजेंटेटिव कौन ने, डॉक्टर यास्मीन अली हॉक, एंड जो एग्जीक्यूटिव डायरैक्टर ने यूनिसेफ दे इन्हां दा नाम है हेनरिटा H हॉल्समैन फोर्ड। ओके, अगर आप करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो यूनिसेफ एंड WHO इन्हां दोनों ने एक रिपोर्ट जारी की जिस दे विच इन्हां ने बोलिया है कि जो इंडिया है ना इनकी सब तो लार्जेस्ट यानी कि सब तो ज़्यादा जनसंख्या हैगी है वो वाले बच्चों की जिन्होंने कोविड के दौरान 2020 दे विच ना जो उन्होंने बेसिक नीड है, तुहानूं पता ही है कि अलग अलग छोटे बच्चों को दवाइयां लगदियां ना वैक्सीनेशन जिहड़ियां जरूरी हुंदियां वो भी उन्होंने नहीं मिल पाइयां। ओके, और यूनिसेफ ने एक होर रिपोर्ट दी है जिस दे विच बोलिया गया है कि जो कोविड-19 की वैक्सीनेशन है अफगानिस्तान दे विच 80% घट गई है, यानी कि लोगों को हुण 80% ना घट वैक्सीनेशन दी जा रही है। कदों तो जदों तो तालिबान का कंट्रोल होया ना विदिन 1 वीक ही ये बुरा हाल हो गया सी अफगानिस्तान दे विच। ओके, तो जो यूनिसेफ की स्टडी है इन्होंने स्टडी दी इथियोपिया की माल नॉरिश्ड चिल्ड्रन के उपर, यानी कि वो वाले बच्चे जिन्होंने कि पूरा भोजन तक भी नहीं मिलता। ठीक है, तो इस दे विच की बोलिया गया है कि ना जो इथियोपिया है इनका एक रीजन है टिग्रे। ठीक है, ये तुसीं याद रखोगे, टिग्रे दे विच करीब 33,000 ऐदां दे बच्चे ने जो कि कुपोषण का शिकार हैगे ने और इन्हां दी इन्नी बुरी हालत है कि हाई रिस्क ते हैगे है, यानी कि हुण इन्हां दी डैथ भी हो सकती है सिर्फ रोटी की कमी दे नाल। ओके, जो इंटरनेशनल लेबर ऑर्गेनाइजेशन है और जो यूनिसेफ है इन्होंने अपनी एक रिपोर्ट दी है चाइल्ड लेबर के उपर जिस विच बोलिया गया है पिछले 2 दहाकियां दे विच चाइल्ड लेबर बहुत ही ज़्यादा वधी है। ओके, और पिछले 4 सालों के 8.4 मिलियन जो बच्चे ने ना वो ज़्यादा हो गए है चाइल्ड लेबर के अंदर। इस तो बाद यूनिसेफ ने एक मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन किया मोडर्ना नाम की कंपनी जो कि वैक्सीनेशन बनाती है। ठीक है, इन्होंने बोलिया है कि असी ना इंटरनेशनल जो वैक्सीनेशन है उनके लिए तुहाडे नाल हथ मिला रहे हैं और यूनिसेफ वो वाले देशों के विच फ्री दे विच कोविड की वैक्सीनेशन दूगा जिथे दे लोग गरीब ने। ओके,
क्वेश्चन नंबर 7, यूनाइटेड नेशन वर्ल्ड जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस विल बी हैल्ड इन विच सिटी। तो इस कांग्रेस नू, इस समिट नू किहड़े देश दे विच आयोजित किया जा रहा है, तो ये इंडिया दे विच ही हो रही है, इसलिए इंपॉर्टेंट रहूगी। ओके, तो अक्टूबर 2022 दे विच ही जो ये वाली ऑर्गेनाइजेशन है, इस कांग्रेस की दूसरी मीटिंग होगी। ओके, पहली मीटिंग कित्थे हुई सी? पहली हुई सी चाइना दे विच 2018 दे विच अक्टूबर च। ओके, तो हुण कित्थे होनी है? इंडिया दे विच दूसरी मीटिंग होगी। इंडिया दे विच एग्जैक्ट किहड़ी जगह के उपर इनू करवाया जाना है, तो यह है हैदराबाद। ओके, जो कि तेलंगाना च मिलना है, ठीक है। और इस दे विच ना एक थीम रखा गया है, टूवर्ड्स जियो एनेबलिंग द ग्लोबल विलेज। ओके, तो इस थीम के अंदर ही इस कांग्रेस नू ऑर्गेनाइज किया जाना है। तो देखो, जो आज़ादी का अमृत महोत्सव चल रहा है ना इंडिया दे विच, तुहानू सब नू ही पता होएगा, इंडिया जो है अपने 75 साल पूरे कर रहा है आज़ादी दे, है ना। और ऐसे ही जो साल नू, ऐसे ही दिवस नू आज़ादी का अमृत महोत्सव के रूप दे विच पूरे देश विच मनाया जा रहा है। इसे दे ही अंडर फिर इस कांग्रेस नू ऑर्गेनाइज किया जाना है। ओके, हुण इत्थे क्वेश्चन आंदा है कि जो जियोस्पैशियल डाटा हुंदा है, ये हुंदा की है एक्चुअल दे विच? तो देखो, इस नू ना आपां जियो डाटा भी बोल सकते हैं। ओके, तो इहदे विच ना लोकेशन की जानकारी दी जाती है, जिद्दां कि एड्रैस हो गया, एरिया हो गया, या जिप कोड वगैरह हो गया, ठीक है। ये सारा कुछ ही जोड़िया जाता है और इनू ना GPS सिस्टम के राही भी प्राप्त किया जा सकता है। हुण इत्थे गल हो रही सी यूनाइटेड नेशन की वर्ल्ड जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन कांग्रेस की। इस दे विच ना ग्लोबल लैवल के उपर जो जियोस्पैशियल इंफॉर्मेशन है, इनू एनहैंस करने के लिए आपस दे विच विचार वटांदरा किया जाता है अलग अलग कंट्रीज़ वालों। हाल ही दे विच कुछ समिट्स हुई हैं, ये देख लैंदे आ। तो जो अपने यूनियन एग्रीकल्चर एंड फार्मर वेलफेयर मिनिस्टर नरेंद्र सिंह तोमर, इन्होंने 11वें नंबर की ब्रिक्स की मीटिंग, ब्रिक्स मतलब ब्राज़ील, रशिया, इंडिया, चाइना एंड साउथ अफ्रीका, ठीक है, इनू इन्होंने अगस्त 27 नू ही चेयर किया सीगा। इस तो बाद पहली बारी G20 दे मिनिस्ट्रीयल कॉन्फ्रेंस ऑन विमेन एम्पावरमेंट की मीटिंग हुई। पहली मीटिंग है, इसलिए इंपॉर्टेंट है। ये कित्थे हुई है? इटली दे विच। तो इटली का फर्स्ट वर्ड देखो, तुहानू बिल्कुल एक तरह लग रहा है ना, तो पहली मीटिंग है और हुई भी कित्थे है? इटली दे विच, ठीक है। और ये विमेन एंड चाइल्ड वेलफेयर मिनिस्टर जो है स्मृति ईरानी, इन्होंने इहदे विच एड्रैस भी किया सीगा और ये वर्चुअली करवाई गई। ओके, दैन PM मोदी ने चेयर की 37वें नंबर की प्रगति मीटिंग। इस दे विच 9 एजेंडे रखे गए सी, जिस दे विच 8 प्रोजेक्ट और एक स्कीम, इन्हां सारिਆਂ ਨੂੰ ही रिव्यू किया गया। दैन यूनाइटेड स्टेट एंड UK इन्होंने बोलिया है कि G7 की ना एक स्पैशल समिट, एक मीटिंग होएगी अफगानिस्तान के बारे दे विच, ठीक है। और इसनों वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा किया जाऊगा। और US दे विच प्रेसिडेंट कौन है? जो बाइडन। एंड UK के प्राइम मिनिस्टर रहेंगे बोरिस जॉनसन। इन्हां दोनों ने ही इस मीटिंग की अनाउंसमेंट की है। दैन जो अपने देश के प्राइम मिनिस्टर मोदी ने, इन्होंने की किया है, विमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप जो होंगे है उन्होंने नाल इंटरैक्ट किया, गलबात की। किहड़े वाला इवेंट हो रहा सीगा? ये इवेंट बहुत इंपॉर्टेंट है, नाम है आत्मनिर्भर नारी हल्ती से संवाद इवेंट। ओके, ये होया 12 अगस्त नू। इसे दे विच ही 1625 करोड़ रुपए ये दिते जाणगे हुण विमेन सैल्फ हैल्प ग्रुप्स नू। ओके, क्वेश्चन नंबर 8, विच बुक रिटन बाय सुभद्रा सेन गुप्ता रिलीज्ड पोस्थुमसली। तो सुभद्रा सेन गुप्ता जो है इन्हां वालों लिखी गई किहड़ी किताब नू मरणोपरांत लॉन्च किया गया? तो देखो, तुहाडा पेपर इंग्लिश दे विच आंदा है, तो तुसीं पोस्थुमसली नू याद रखोगे। ये वो वाले इवेंट हुंदे है जो कि किसी इंसान की मौत तो बाद किए जाते हैं। ओके, तो किहड़ी बुक है जिसनू लॉन्च किया गया? ये रहेगी लेट्स गो टाइम ट्रैवलिंग अगेन। ओके, तो जिहड़े सुभद्रा सेन गुप्ता है ये बहुत ही फेमस लेखक ने। ये ना बच्चों के नाल रिलेटिड जिहड़े भी किताबां हुंदियां ना, इन्हां नूं लिखते हैं। इन्हां दी ही किताब हाल ही दे विच लॉन्च की गई। तो इत्थे जो तुहानूं बाकी 3 बुक्स दिख रही हैं ना, ये भी सुभद्रा सेन गुप्ता ने ही लिखी है। ओके, और इस बुक नूं रिलीज़ किन्ने कीता है? पफिन बुक्स ने। ऑल राइट, और इस बुक दे विच ना जो इलुस्ट्रेशन है, ठीक है, बहुत ही फेमस इलुस्ट्रेटर ने जिन्हां दा नाम है तपस गुहा। ये भी तुसीं याद रखना है, इन्हां ने कीती है। इलुस्ट्रेटर कौन हुंदे है? ਉਹ वाला इंसान जो कि किताबां दे विच पिक्चर्स एंड पेंटिंग्स वगैरह नूं ड्रॉ करदे आ ना, इन्हां नूं बोलिया जांदा है इलुस्ट्रेटर। तो मैं डायरैक्ट तुहानूं ये भी दस सकदी सी ना कि इस बुक दे विच जो पेंटिंग है या जो पिक्चर है वो इन्हां ने दित्तियां,
पर मैं सोचा कि तुहानू इत्थे पता चलना चाहिए है वोकैबुलरी दे विच कि इलूस्ट्रेटर कौन हुंदे ने। ओके, अगे मैं तुहानू काफ़ी बार जो करंट दी बुक्स है ना वो करवाइया हुई है ना, पर इस बारी मैं तुहानू कुछ इंपॉर्टेंट बुक्स दे रही हाँ जो कि अक्सर पेपरां दे विच आंदियां ने। पहली है न्यू डायमेंशनस ऑफ इंडियाज़ फॉरेन पॉलिसी, इनू लिखा गया सी अटल बिहारी वाजपेयी वालों। दैन इंडिया विन्स फ्रीडम अब्दुल कलाम आज़ाद। ओके, इदा तुसीं सारियां ही बुक्स पढ़ लेना। ऑल राइट, तो सारियां ओ वालियां बुक्स है जो कि प्रीवियस ईयर के पेपर्स दे विच आ चुकी हैं। ओके, नैक्सट 9th क्वेश्चन देखते हैं। इंडिया विल बाय AK-103 राइफल्स फ्रॉम विच कंट्री। तो AK-103 राइफलों जो हैगियां ये भारत किहड़े देश तो खरीदेगा, तो ये खरीदिया जानिया रशिया तो। ओके, तो देखो अगस्त 20 नूं ही इन्हां ने बोलिया आ इंडिया ने कि रशिया दे नाल असीं एक डील फाइनल कर रहे हैं जिस दे तहत रशिया तो AK-103 सीरीज़ दियां राइफल खरीदियां जानियां। ओके, हाले ये दस्सिया नहीं गया कि किन्ने रुपए इहदे लई खर्चे जाणगे या फिर किन्नियां राइफल्स होणगियां, पर इनू इंडियन आर्मी दी जो एमरजेंसी फाइनैंशियल पावर है इनकी प्रोविजन के अंडर ही खरीदिया जाना है। इंडियन आर्मी वालों ना एक प्रोग्राम चल रहा है जिसका नाम है मैगा इन्फेंट्री मॉडर्नाइजेशन प्रोग्राम। ओके, और इनके तहत की बोलिया गया ये वाली राइफल्स खरीदियां जानियां और इनदे विच जिन्ने भी पुराने हो चुके हथियार है इन्हों रिप्लेस किया जा रहा है इंडियन आर्मी वालों। ओके, हाँ जी, अगर आप रशिया की गल करांगे कैपिटल है मॉस्को, प्रेसिडेंट रहेंगे व्लादिमीर पुतिन। ओके, और करंसी केड़ी है रूबल। करंट दे नाल रिलेट करिए तो सैप्टेंबर 2020 दे विच मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस इन्होंने एक डील साइन की रशिया की मैन्युफैक्चरिंग के लिए। ओके, इन्होंने बोलिया 6 लाख AK-47 203 राइफल ये इंडिया दे विच ही बनाइया जाणगियां। तो AK-47 तो तुसीं डेफिनेटली नाम सुनिया ही होना है ना। तो ये जो AK-47 203 है ना ये मोस्ट एडवांस वर्जन है AK-47 राइफल का। ओके, और इन्हों मेड इन इंडिया प्रोग्राम के अंडर ही ये वाली डील नूं साइन किया गया। इंडिया MiG-29 फाइटर जेट एंड सुखोई MK-1 ये दोनों ही चीज़ां कित्थों लेगा रशिया तो। दैन रशिया ने अपनी सब तो एडवांस एंटी मिसाइल एयर डिफेंस सिस्टम इनू हाल ही दे विच टेस्ट फायर किया है, इसका नाम याद रखना है S-500। ओके, दैन रशिया ने अपने आप नूं ओपन स्काई पैक्ट दे विचों बाहर कढ़ दिता है। इस दे नाल नाल जो USA है ना इन्हें भी अपने आप नूं ओपन स्काई पैक्ट दे विचों अलग किया सी। ऑल राइट, दैन 300 तो ज़्यादा जो एंडेंजर्ड सील्स है इन्हों मरे हुए पाया गया कैस्पियन सी दे रशिया वाले रीजन दे विच। ये रीजन रहेगा डेगेस्टन। ऑल राइट, इत्थे ही इन्होंने बोलिया है कि बहुत ज़्यादा इंडस्ट्रियल पोल्यूशन करके ये जो सील्स है ना ये मर गई सीगियां। ओके, क्वेश्चन नंबर 10 वेंचुआ फेस्टिवल बिलोंग्स टू विच स्टेट। तो देखो जो वेंचुआ नाम का त्यौहार है किहड़े राज दे नाल संबंध रखता है। तो त्यौहारां दे नाल अक्सर ही क्वेश्चन आते हैं। तो अगे जो स्लाइड मिलेगी ना काफ़ी सारे क्वेश्चन मैं तुहानूं पा दिते ने। ओके, तो यह है जी असम का त्यौहार। ऑल राइट, तो इनू 18 अगस्त 2021 नूं असम दे विच मनाया गया। असम की ट्राइब है जिसका नाम है टीवा। ओके, इनके वालों मनाया जाता है। राइट, और ये वाला जो फैसटिवल है ना ये इत्थे दे एग्रीकल्चर यानी कि खेती के नाल संबंध रखता है। तो जदों चंगी फसल हुंदी है हारवेस्टिंग कर ली जाती है ऐसे ही खुशी दे विच ए वाले त्यौहार नूं मनाया जाता है। और इत्थे हुण गल हो रही है टीवा ट्राइब की। तो तुसीं ये भी याद रखना है कि टीवा ट्राइब कित्थों बिलोंग करेगी, मेनली असम तो। ठीक है, और ये ट्राइब ना जो बोडो कचरी ग्रुप है वह ही एक हिस्सा हैगी है। मेनली तुहानूं मिलेगी असम एंड मेघालय दे विच। ठीक है, पर थोड़ा बहुत तुहानूं अरुणाचल प्रदेश एंड मणिपुर के हिस्सों के विच भी ये वाली ट्राइब देखने को मिल जानी है। और ये जो टीवा ट्राइब है ना इनका तुसीं देखो मीनिंग की है। टीवा दे विच जो टी है इसका मतलब हुंदा है वाटर एंड वा जो है इनका मीनिंग रहेगा सुपीरियर। ओके, तो अगर आप ट्राइबल फैसटिवल देखिए कुछ तो हॉर्नबिल फैसटिवल जो है ये मनाया जाता है नागालैंड दे विच। ठीक है, और ये इन्हां दा एनुअल फैसटिवल हुंदा है 10 दिन के लिए इनू मनाते हैं और ऐसे नहीं बोलिया जाता है फेस्टिवल ऑफ फेस्टिवल्स। ठीक है, इस तो बाद है अराकू उत्सव सॉरी ये मनाया जाता है आंध्रा प्रदेश के विच। इनू 2 दिन के लिए हर साल मनाते हैं। ठीक है, इहदे विच जो इत्थे दियां लोकल ट्राइब्स हुंदियां ना आंध्रा प्रदेश दियां इहदे कल्चर एंड हैरीटेज नू दिखाने के लिए मनाते हैं। ठीक है, और जो अराकू नाम है ना ये इत्थे दी एक वैली का नाम है जो आंध्रा प्रदेश दे विच मिलेगी। दैन सोलंग फैसटिवल ये मनाया जाता है अरुणाचल प्रदेश के विच। भी एनुअल फैसटिवल है और ये सोशो रिलीजियस यानी कि धार्मिक
एंड जो समाजिक ये वाला फैसटिवल है ये आदि ट्राइब वालों इनू मनाया जाता है। ये भी एग्रीकल्चर के बेस्ड ही फैसटिवल होंदा है, ठीक है। और ये हर साल ना सैप्टेंबर के महीने में मनाते हैं। दैन मेड सनाना ये है कर्नाटका का फैसटिवल, राइट। और ये मनाया जाता है हर साल 3 दिन के लिए। और ये तमिलनाडु दियाँ जो ट्राइब्स होंदियां ना ये सारियां ही इस फैसटिवल नूं ये भी मनांदियां, यानी कि कर्नाटका दे विच भी और तमिलनाडु दे विच भी मनाते हैं। दैन कर्मा फैसटिवल ये रहेगा ओडिशा का, ओके। और ये गॉड कारामंद एंड गॉडेस करम सैनी इन्हां दोनों नूं ही डिवोट करके मनाया जाता है। और जो पिंड दियाँ अनमैरिड गर्ल्स होंदियां ना उन्हां वल्लों इस फैसटिवल नूं मनाया जाता है, ओके। इस तो बाद मनेश्वर फेस्ट ये हुंदा है राजस्थान दे विच। राजस्थान की ट्राइब है भील, ठीक है। इस ट्राइब वालों इसनूं मनाया जाता है। और राजस्थान के नाल नाल MP गुजरात इन्हां एरियाज दे विच भी इनू मनाउंदे ने, ठीक है। और ये ना स्पैशली माही रिवर एंड सोम रिवर इन्हां दे किनारियां दे उपर मनाया जाता है, ठीक है। और लॉर्ड शिवा लॉर्ड विष्णु इन्हां दोनों की ही पूजा जो है ये भुवनेश्वर जो फैसटिवल दे विच कीती जाती है, ओके। क्वेश्चन नंबर 11, इंडिया एंड विच कंट्री साइंड अ मेमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग टू सेट अप आर्टिफिशियल सेंटर ऑफ एक्सीलेंस ऑफ टेक्नोलॉजी सिटी इन इंडिया। तो देखो भारत ने किस देश के नाल समझौता किया है कि आर्टिफिशियल का एक सेंटर है एक्सीलेंस ऑफ टेक सिटी, ठीक है। इसनू स्थापित किया जाना है भारत दे विच, ठीक है। तो इन्ना समझौता किया गया इजराइल दे नाल। तो जो इजराइल की एक कंपनी है जिसका नाम है कोरसाइट AI, ठीक है। इहदे नाल ही इंडिया की एमट्रॉन ने समझौता किया है, ठीक है। ये असम की एक इलैक्ट्रॉनिक डेवलपमेंट की कॉरपोरेशन है, राइट। इन्हां विच जो मैमोरेंडम ऑफ अंडरस्टैंडिंग साइन होया ना इस दे अंडर इस सेंटर नू गुवाहाटी दी जो टैक सिटी है इत्थे ही स्थापित किया जाना है। एंड द मेन एम की है कि जो आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस की हैल्प दे नाल इन्हां ने बोलिया कि जो फेशियल रैकगनिशन है ना वो की जाऊगी, यानी कि जो अपने चेहरे होंदे हैं इन्हां दी पहचान की जानी है। इनू ना बहुत ही डिफिकल्ट सिचुएशन दे विच किया जाऊगा, जिसका मान दो कि कोई चलती हुई भीड़ है, ठीक है, या फिर एक्सट्रीम एंगल्स दे विच, या तुसीं कह सकते हो लो क्वालिटी दियां इमेजिस दे विच, या फिर कुछ हद तक अगर फेस कवर किया होया, ठीक है। तो वो सारियां ही सिचुएशन दे विच भी ना आर्टिफिशियल इंटैलीजेंस दे नाल जो फेस है इनकी पहचान की जा सकेगी, ठीक है। इस दे नाल एक होर अनाउंसमेंट की गई है कि इत्थे ना फेशियल रैकगनिशन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस इनू भी ओपन किया जाना है, ओके। असम की कैपिटल है दिसपुर। CM रहणगे हेमंता बिस्व शर्मा, गवर्नर है जगदीश मुखी, ठीक है। इजराइल की कैपिटल जेरूसलम। PM नफ्ताली बेनेट। करंसी रहेगी शेकेल। अगर करंट दे नाल रिलेट करते हैं तो नाबार्ड ने अनाउंस किया 1236 करोड़ रुपए दिते जाएंगे असम नू ताकि अपना रूरल इंफ्रास्ट्रक्चर की डेवलपमेंट कर सके, ओके। और करीब करीब 18 एशियन एलीफेंट जो है इन्हां दी नगांव जो डिस्ट्रिक्ट है ना असम की इत्थे डैथ हो गई, इन्हां दे उपर ना बिजली गिर गई सी। और 2001 तो बाद इन्नी मास डेथ एशियन एलीफेंट की ये पहली बारी देखने को मिली है। इस तो बाद पटोला नाच ये है पपेट का नाच हुंदा है, एक आर्ट फॉर्म है जो कि असम दे नाल रिलेट करती है। तो ये न्यूज़ में क्यों आई क्योंकि ना इन्हां दे नाल एक वीडियो बनाई गई है, ठीक है। और इनू बनाया गया COVID-19 दे लई। ऐसे दे विच ही ना पब्लिक दे विच अवेयरनेस फैलाई जाएगी एस नाच दे थ्रू, ओके, एस आर्ट फॉर्म दे थ्रू। दैन बोहाग बीहू जो बर्ड्स होंदे ने ये मिलणगे तुहानूं असम दे विच। इन्हां दी पहली बारी काउंटिंग की गई है 2021 दे विच किंदे वल्लों बर्ड काउंट ऑफ इंडिया वल्लों। दैन रायमोना नैशनल पार्क इसनूं असम का 6वां नैशनल पार्क घोषित किया गया। दहेंग पटकाई नैशनल पार्क जो है ये 7वां नैशनल पार्क बनया असम का, ठीक है। ये वाले क्वेश्चन 100% तुहानूं ये दोनों क्वेश्चन किसी ना किसी पेपर से जरूर मिलने हैं, ओके। असम दे विच पहला काजीरंगा नैशनल पार्क, मानस नैशनल पार्क, नामेरी नैशनल पार्क, दिब्रू शिखोवा नैशनल पार्क एंड ओरांग नैशनल पार्क, ठीक है। 5 पहला सीगे, हुण 2 मिला के टोटल 7 हो गया। क्वेश्चन नंबर 12 ये अज दा लास्ट क्वेश्चन है। NTPC लॉन्च्ड इंडियाज लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर PV प्रोजेक्ट। ये तुसी याद रखोगे PV, ठीक है। इनू केड़ी स्टेट दे विच है ना लॉन्च किया गया, ठीक है। तो ये रहेगी आंध्र प्रदेश, ऑल राइट।
ਤਾਂ ਦੇਖੋ जो अगस्त 21 ਨੂੰ इंडिया ਦਾ ਲਾਰਜੈਸਟ ਪਾਵਰ ਪ੍ਰੋਡਿਊਸਰ ਕਿਹੜੇ ਵਾਲਾ NTPC, ਸਭ ਨੇ ਇਹਦਾ ਨਾਮ ਸੁਣਿਆ ਹੋਣਾ ਹੈ। ਇਹਨਾਂ ਨੇ ਹੀ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਲਾਰਜੈਸਟ ਫਲੋਟਿੰਗ यानी कि तैरन वाले सोलर PV मतलब फोटो वोल्टेक ओके ये वाले प्रोजेक्ट ਨੂੰ ਲਾਂਚ ਕੀਤਾ ਹੈਗਾ। ਇਹਨੂੰ ना सिमाद्री थर्मल स्टेशन, ये तुसी याद रखना है, मैं इत्थे लिख दिनी आ सिमाद्री ओके। ये वाला जो थर्मल स्टेशन है जो कि आंध्र प्रदेश के विशाखापट्टनम च तुहानू मिलेगा, इत्थे ही लॉन्च किया गया। ऑलराइट, इनकी कैपेसिटी कितनी रहेगी 25 मैगावाट। और देखो इनू ना एक स्कीम है जिस दे अंडर जो है लॉन्च किया जा रहा है। ये वाली स्कीम तुहाडी टिप्स ते रहनी चाहिए है ओके। ये है फ्लैक्सीबिलाइजेशन स्कीम। ऑलराइट, तो इनके अंडर जो सैटअप किया जा रहा है ना, तो इस स्कीम के अंडर पहला इदां दा प्रोजेक्ट है जिसनों कि स्टार्ट किया जा रहा है गवर्नमेंट वालों। तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने इस स्कीम नूं 2018 दे विच शुरू किया सीगा, ताकि जो पावर जनरेशन है या फिर जो थर्मल पावर सैटअप करने होंगे हैं इन्हां दे विच ना फ्लैक्सीबिलिटी लैके आई जा सके ओके। और हुण टोटल NTPC दे कोल ना 71 पावर स्टेशन जो हैगे ने हो चुके ने ओके। हाँ जी, जो NTPC है इसनूं एस्टैबलिश किया गया 1975 दे विच। हैडकुआटर तुहानूं मिलना है दिल्ली दे विच। CMD कौन रहणगे, ये हैगे गुरदीप सिंह। करंट दे नाल रिलेट करिए तो NTPC ने हाल ही दे विच अपना एक गोल अनाउंस किया है कि 2032 तक ना विंड एनर्जी एंड सोलर एनर्जी इन्हां दोनों दे विच ही 60 गीगावाट तक की कैपेसिटी नूं अचीव कर लेंगे, ठीक है, या फिर 60,000 मैगावाट। आफ्टर दैट जो NTPC है इन्होंने इंडिया का लार्जेस्ट सोलर पार्क इसनूं एस्टैबलिश किया रन ऑफ कच्छ विच, ठीक है, जिसकी तुहानूं लोकेशन मिलनी है गुजरात दे विच। NTPC ने साइन कर लिया है यूनाइटेड नेशन की एक संस्था जिसका नाम है यूनाइटेड नेशन ग्लोबल कॉम्पैक्ट्स CEO वाटर मैंडेट। ये करती की है, ये वाटर मैनेजमेंट के बारे में काम करती है। आफ्टर दैट NTPC एंड इंडियन ऑयल इन्हां दोनों ने ही हाथ मिलाया सीगा कि एक प्लांट बनाया जाना है दिल्ली दे विच वेस्ट टू एनर्जी, यानी कि जो फालतू समान हुंदा है उसे तो ही एनर्जी नू प्रोड्यूस करन दे लई ओके। तो ये हो गया अपने अज दे सारे ही इंपॉर्टेंट करंट अफेयर्स। आई होप तुहानूं ये सैशन अच्छा लग्या होना है, ठीक है। अगर तुसी कोई सजैशन देना चाहते हो तो ऑलवेज वेलकम, तुसी कमेंट सैक्शन दे विच दस सकदे हो। तो फिर आपां कल मिलते हैं, ठीक है, स्पैशल सैशन दे विच। टिल दैन टेक केयर, बाय बाय।